रियल एस्टेट का कोई सवाल, Your search ends here. पंकज मोंगा जी का स्वागत करते हैं इस मौके ਦੇ ਉੱਤੇ। पंकज मोंगा जी वेलकम सर। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ which is also very good news। ਅਸੀਂ 2% ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ 2.4% ਹੈ। ਕੋਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ 2.4 ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ 2% ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਇਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ US ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ 100%। ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਾਣਗੇ। ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 0.25% ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 0.50 ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਸੈਂਸਸ 0.25 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ US ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਬਸਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਅਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਉਹ 0.50 ਘਟਾਣ, ਬਟ ਇਟਸ ਫਲਿਪ ਆਫ ਅ ਕੁਆइन बेसिकली। किस तरह वो स्टार्ट करना चाह रहे ने, पहली बारी पिछले 5 साल बाद वो पहली बारी इंटरेस्ट रेट घटान लगे ने। एंड अगर मैं सोचा तो मेरे ख्याल 0.25 घटाएंगे। एंड जी साडी बारी है मैं सुन रहा काफी कि यस क्योंकि 2% आने की वजह नाल बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हुण बैंक ऑफ कैनेडा जो 23 अक्टूबर नूं घटाएगा तो हो सकता है वो 50 घटावे। मैं हले भी थोड़ा कॉशियसली चलना चाहूँगा इत्थे क्योंकि अक्टूबर 15 इन्फ्लेशन की रिपोर्ट हले भी बाकी है। ठीक है, कल जी आई है अलग आई है। इस तो बाद एम्प्लॉयमेंट सानू भी दिखता पे 11 अक्टूबर को एम्प्लॉयमेंट भी आनी है। 27 सितंबर को साडी GDP आनी है, GDP भी थले रहेगी। आई नो एम्प्लॉयमेंट भी वधी होएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी वधी होएगी। ये भी एक फैक्ट है क्योंकि कोई एक तरह का कुछ हैजा नहीं हो सकता कि एकदम साडी एम्प्लॉयमेंट वधनी शुरू हो जाए क्योंकि अजी हालात नहीं बैठी हाँ। लेकिन यस इन्फ्लेशन हले मैनू नहीं पता। अक्टूबर 15 ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਆਇਲ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਔਨ ਸਟਿਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕੈਰੋਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ 25 ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਨਸਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 23 ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ 50 ਘਟੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 16 ਵੈਨਸਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਔਰ PK ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੈਨਸਡੇ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਔਰ PK ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ PK ਜੀ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। PK ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? थैंक यू वेरी मच जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल अवर लिसनर्स। वाकई तुसीं ठीक किया, बड़ी खबरां ने स्पैशली है मॉर्गेज दे पक्षों है जिहड़ी खबर आई है लेटेस्ट जबरदस्त जिन्होंने कहते हैं कि पता नहीं मेरे तो पहले मोंगा साहब ने डिस्कस किया कि नहीं, बट मैं उन्होंने गल सुन रहा सीगा। इनू नाम दिता गया है बोल्डेस्ट मॉर्गेज रिफॉर्म्स इन डिकेड्स। अच्छा, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਦੀ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ which is a very good thing to happen। और दूसरी गल इन्होंने amortization 30 ईयर ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ for first time buyer ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ for first time buyer ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ 30 ईयर amortization for new construction। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ratehub.ca ਵੀ ਆਈ ਕੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ most accommodating mortgage policy updates since 2008
फाइनेंशियल स्ट्रेन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 25 ਈਅਰ ਐਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਰ 30 ਈਅਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि भाई वो जो गाना ने सी बड़ा हिंदी गाना बड़ा पुराना दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख भरे दिन आए रे लग रहा है कि आएगा। हालांकि गलत गल नाल हो रहा है, हालांकि एम्प्लॉयमेंट खराब आ रही है, जॉब जा रही है, वो दुख वाली गल्लां ने सारियां, पर मैं सिर्फ रियल एस्टेट के मुतल्लिक वाली गल कर रहे हैं। मकलन साहब ने तो साफ ही कहता हैगा, मैं तो बड़ा हैरान है इन्ना ओपन उन्होंने बोल्ड जो स्टेटमेंट दी है, बैंक ऑफ कनाडा रेडी फॉर बिगर रेट कट्स। उन्होंने कहता है अग्रेसिव एक्शन आते उन्होंने सीधी गल करती हैगी और ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੂਲਿੰਗ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਫਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਗਰ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਇਕੋਨਮੀ, ਮੌਰਗੇਜ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। अनिल जी तुसी आंदे रहो सर, बारी सारी कॉल्स लेने, कोई सवाल कोई कमेंट प्लीज गो अहेड। हाँ जी जय श्री राम जी और मैं समस्त मानवता के मंगल की कामना करता हूँ। आज मैं काफी इसमें जो हमारे मंगल की कामना करते हैं। हाँ मैं आज ना जो प्रदुत जो हमारे जो विद्वान पुरुष में इनका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था और क्योंकि मेरे पास प्रश्न थे इनके लिए इनकी योग्यता के अनुसार प्लीज। तो मैं प्रश्न करना चाहूंगा, अभी आपने पीके जी ने ये बोला कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब आए होंगे, तो पहला जो मेरा प्रश्न मोगा साहब से है क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं इस विषय। मेरा प्रश्न ये है कि जिस गति के साथ इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए अब उसी गति के साथ ही ये इसको नीचे कर रहे हैं, तो महंगाई क्या काबू में आई? जो 2% दिखाया गया है ये लोगों को लुभाने के लिए है या वास्तविकता के अंदर है? क्योंकि अभी जब भी आप अपना सामान किसी ग्रोसरी स्टोर पे खरीदने गए होंगे या किसी जगह गए होंगे, हो सकता है चीजों की कीमतें कम आ गई हो, क्या मनुष्य के जीवन के ऊपर जिसके लिए जीने के लिए जो चीजें होती हैं क्या उनके अंदर कोई किसी चीज के अंदर कमी आई? मेरा प्रश्न पहला आपसे ये है। जी मोहम्मद साहब सॉरी आप जवाब जरूर आप ही दोगे, लेकिन ये जरा इन्फ्लेशन का जो गलतफहमी रहती है कि प्राइस नीचे आने की, ये जरा प्लीज बता दीजिएगा आप सर। हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ इनको। एक्चुअली क्या है जो आपने बोला ना कि कमी आई, सर कमी नहीं आई है, कमी कभी नहीं आएगी। कमी आने का मतलब है डिफ्लेशन, वो इन्फ्लेशन नहीं रहेगी। ये इन्फ्लेशन है कि 2% बढ़ा पिछले महीने से इस महीने कितना बढ़ा, पिछले साल की सितंबर से इस साल के सितंबर में कितने परसेंटेज बढ़ा, घटा नहीं। सो कहने की मतलब है जो चीज $5 की थी वो $5 की चीज 2% के हिसाब से बढ़ी है, ना कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $5 की चीज $3 की बन जाए या $4 की बन जाए। उसका मतलब होता है डिफ्लेशन, वर्ड याद रखिएगा, डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की बात हो रही है। महंगाई की दर कितनी है, महंगाई कितनी दर से बढ़ रही है? सो 2% से बढ़ रही है, 8% से नहीं बढ़ रही है जो कि पहले हो रहा था। 8%, 7%, 6%। अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां चीजें घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी, बट थोड़ी गति से बढ़ेंगी, थोड़ी दर से बढ़ेंगी। जी अनिल। हाँ जी देखिए हम लोग संख्याओं के ऊपर बात करने जा रहे हैं, हम उसके ऊपर केंद्रित रहेंगे, ठीक है जी, हम दाएं बाएं नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो मेरा अब मेरा जो विषय है, देखिए ऐसा होता है कि जो मध्यम परिवार जो सॉरी आवाज बहुत कट रही है आपकी, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मध्यम साइड का जो परिवार था उस परिवार की जो आय थी उसके आय के बाद उस बहुत सारी चीजों की कीमतें डबल से ऊपर हो गई। जब यानी कि उस मध्यम परिवार को ये जो यंत्र था, ये जिन्होंने यंत्र का प्रयोग किया उसके बाद उन्होंने उसको गरीब परिवार बढ़ा दिया। तो यानी कि अब सरकार उसके जो कीमत जो इंटरेस्ट पहले बढ़ा दिया अब कम कर रहे हैं। तो आप इसके दुष्परिणाम के बारे में कोई जरा थोड़े अपना विचार देना चाहेंगे कि इसके परिणाम क्या होंगे बाद में? आज तो हमें इसको लग रहा है,
आज हमें लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन इससे दुष्परिणाम भी तो आएंगे ना। तो क्या अर्थव्यवस्था, क्या जो वित्तीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जानने वाले ऐसा व्यवहार करते हैं? आपके इसके बारे में क्या विचार है? ओके, एक चीज पहले तो एक चीज बता दूं, दोबारा से समझा दूं कि चीजें नीचे नहीं आएंगी, गति कम हो रही है बढ़ने की। पहली चीज तो ये समझ ली थी। दूसरी चीज, हम सरकार को जरा अलग रख सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने इसको बढ़ाया था, बैंक ऑफ कनाडा घटा रहा है, सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। थर्ड चीज, आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि चीजें डबल हो गई हैं या सारा जो हो गया था, जो पूरी दुनिया में ये चीजें डबल हुई थी या जो भी हुई है, बड़ी है। सिर्फ एक हाउसिंग मार्केट थी जिसमें पागलपन सिर्फ हमारी कंट्री में शुरू हुआ था, या न्यूजीलैंड में, और उसमें भी कुछ ऐसा चल रहा था। तो कुछ एक दो कंट्रीज हैं जहां पे ये पागलपन सिर्फ हाउसिंग में चला था। अदरवाइज जो चीजें बाकी महंगी हुई हैं वो हर जगह पे हुई थी, और हर जगह पे ही वो सिचुएशन अब वापस आ रही है। अब ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात, मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे अनिल जी कि लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोग अब वो उतनी इनकम नहीं बढ़ी है जितनी की महंगाई हो गई है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो चीजें बढ़ गई हैं उसको घटाने के लिए या तो रिसेशन में जाएं हम, बुरी तरह रिसेशन, मतलब लोगों के पास काम ही ना हो, ऐसे रिसेशन में चले जाएं, देन तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर उस तरह के रिसेशन में हम नहीं जाना चाहते हैं जहां पे लोगों के पास खाने को पैसे बचे ही ना, तो अब ये सिचुएशन है कि जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो नहीं खर्च पाते हैं, उनको खाने के लिए तो खर्चना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी जगहों से उनको हाथ थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। चाहे वो ट्रैवल हो सकता है, चाहे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, चाहे कपड़े भी हो सकते हैं। इसमें वो मैं कुछ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, उनके लिए वाकई सिचुएशन खराब हो गई है जब तक वो उस कैटेगरी में नहीं आते जहां उनकी इनकम की ग्रोथ हो सके। सो मैं अब इससे ज्यादा और एक्सप्लेन क्या कर पाऊंगा? नहीं, देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ, आप लोग इसके साथ सहमत नहीं होंगे कि बैंक ऑफ कनाडा का अपना कोई विचार नहीं है, वो मात्र एक सरकार की कठपुतली है, इसके ऊपर कुछ नहीं। सरकार के जो राजनीतिक कारण बनते हैं उन कारणों के अनुसार उसका वो प्रयोग करती है, और जिस राष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी संस्था सरकार के हाथ में खेलती हो, लोगों का ना सोचती हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये उनके लिए सोचने का विषय है कि उनका जो अस्तित्व है वो राष्ट्र के लिए है या लोगों के लिए है, उनको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो मैं आपके इस विचार के साथ सहमत नहीं हूँ कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट संस्था है, नहीं, वो सरकार के हाथ की कठपुतली है। अनिल जी, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, वो जवाब ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से जो लोग आए हैं ना, वो ऐसी चीजें सोचते हैं क्योंकि अपनी जिंदगी में उन्होंने देखा ही है। यहाँ के जो लोग हैं ना, ऐसी चीज नहीं सोचते हैं। जिनको इस सिस्टम की जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, जिनको इस सिस्टम की नॉलेज है, वो नहीं सोचते हैं। ये जो पीछे से जो हम सीख के आए हैं, हम वो ही सोचते हैं। दैट्स ऑल मैं आपको बोलना चाहूँ। नहीं, देखिए, ऐसा मैं आपके इस विचार के साथ मेरे को लगता है इसमें बहस करनी ठीक नहीं है, फिर तो बहस तो कभी खत्म ही नहीं होगी। कई उन्होंने अपना विचार दे दिया, मंगल जी ने अपना विचार दे दिया। ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ डिस्कशन कर बैंक ऑफ कनाडा का टिप्पणी करना चाहूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ, मेरी बेनती है। हाँ जी, अगली मैं इनको अनिल जी को ये बता दूं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन की स्लोएस्ट ग्रोथ है, ये पिछले 40 महीनों के अंदर इस बार ऐसी आई है, और इसका इनको डर लग गया कि ज्यादा नीचे ना गिर जाए। आपने कहा ये भी बनाई हुई है, इनके 2 मेजर्स जो ट्रैक करते हैं जिससे इन्फ्लेशन लाते हैं, एक सीपीआई ट्रिम और एक सीपीआई मेड इन। जो कि सीपीआई ट्रिम भी 2.4 नीचे आया है और मेड इन भी 2.7 नीचे आया है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली यहाँ तक ही आ गया। ये बनाया है, दिखाया है, ये बात अलग है। इनका मेजर करने का तरीका मैं मान सकता हूँ अलग है, यूएस का अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल इनसे सहमत नहीं हूँ अनिल जी से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि सब मिली बात है। नहीं तो मकलन साहब का कई बार इनसे झगड़ाना होता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, धमकियां ना दी जाती दूसरे को कि डोंट इंटरफेयर। आपको पता होगा हमने आज से 4 महीने पहले ये बात भी डिस्कस की थी। जी बिल्कुल। हाँ जी, हिरेन कुमार जी तुसी आंदे हो। हिरेन कुमार जी, गो अहेड। हिरेन जी।
युजवेर जी सत श्रीकाल, नमस्कार, कैसे आप? सत श्रीकाल, नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक है सर जी, थैंक यू जी। युजवेर जी, पीके सब्बरवाल साहब और उनसे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी। जी। और साथ में सौरभ जी हैं, सौरभ जी, पंकज मोंगा साहब। हाँ, पंकज मोंगा जी। तो सर पंकज मोंगा जी से ये सवाल है कि मान लो ट्रम्प साहब आ जाते हैं, राइट, तो इकोनॉमी अच्छी होगी या कमला हैरिस जी आते हैं तो इकोनॉमी अच्छी होगी यूएस की और यूएस से रिलेटेड कनाडा और सबकी, राइट? एक ये सवाल है, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर ट्रम्प साहब आएंगे तो इकोनॉमी ज्यादा अच्छी होगी, शेयर मार्केट वगैरह अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, सारी जंग बंग सब बंद हो जाएगी, राइट? दूसरा सवाल पीके सब्बरवाल जी से है कि अभी मैंने एक लिस्टिंग, मैं रियल एस्टेट में भी हूँ और उसमें दोनों में हूँ, मेरा दोनों का लाइसेंस है मेरे पास, तो दोनों काम करो, दोनों अच्छा चल रहा है। तो सर रियल एस्टेट में मेरा सवाल है, मेरी एक लिस्टिंग अभी चढ़ाई हुई है, मेरी पहली लिस्टिंग है सेल के लिए, तो वो अभी मैंने बॉन्ड में रखी है, तो प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी पिछले 3-4 महीने में? थैंक यू सर। थैंक यू। मैं पहले क्विकली अपना आंसर दे दूं, फिर आप आराम से देना। या वैसे भी जी जनाब, ऐसे है कि ये जो लिस्टिंग है प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, या बिल्कुल भी ये आप मत सोचिए कि ये बिल्कुल धीरे धीरे पता भी नहीं चलना एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, दैट्स ऑल, और हो चुकी भी है। इसको मैं एक वर्ड यूज करूंगा, स्टेज इज सेट नाउ, स्टेज सेट हो चुका है इस वक्त। आगे क्योंकि तुम्हें पता है कि आप रियल टाइम में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मई, जून और सितंबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जब जो है सप्लाई का हम देखते हैं जबरदस्त एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सितंबर ऑलरेडी आ ही चुका है इस वक्त और अभी डिक्लेयर हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जबरदस्त एक्टिविटी या प्राइस बढ़ेंगे, ना एक्टिविटी बढ़ेगी। जो आपकी बफर है पड़ा हुआ बहुत ज्यादा इन्वेंट्री का, वो धीरे धीरे क्लियर होगा। इसको आते आते पहला क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर आ जाएगा सर जी। ठीक है ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੌਰਭ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਅਵਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਕੁਇਕਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ प्रोजेक्ट है वो अनाउंस कर दो, और फिर पंकज जी भी अपने प्रोजेक्ट्स या कोई सर्विसेज वो भी दसेंगे। हाँ, उसमें इन भाई साहब का भी बड़ा फायदा हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त अभी भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बिल्डरों से, अभी भी सब कुछ मिला जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अभी जो है इस वक्त हलचल बड़ी है, हरकतें बड़ी हैं, लेकिन प्राइस अभी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा हमारे को। जी मोगा साहब, आप बता दीजिए। जी बेसिकली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पीके जी है, अगर आप रियल एस्टेट से बाहर रह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी भी क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट यूएस में गिरने शुरू हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा, सिर्फ यूएस ही नहीं, क्योंकि यूएस के बेस पे बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। सो अब उन्होंने ये अगर घटाना शुरू कर दिया तो हम ये देखेंगे कि मार्केट काफी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और पहले से भी ठीक है। वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑल टाइम हाई, मैं ये कहूंगा स्टॉक मार्केट में, लेकिन जिन्होंने भी देखा है अभी पिछले दिनों कमाया है, तो उनको पता है कितना कमाया उन्होंने, और आने वाला जो 1-1.5 साल है वो भी बहुत अच्छे जाने की उम्मीद है हमें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट। और आप अगर इंश्योरेंस के लिए कुछ सोच रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल है, डिसेबिलिटी है, आपके विजिटर आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी आप किसी तरह के भी इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 6472851007। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। पीके जी, फोन नंबर तुसी भी दियो। 6472994757। थैंक यू। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਤਾਂ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਔਰ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, 416 475 5000 416 475 5000। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।